ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਫਾਈਨਾਈਟ ਫੀਲਡਸ। ਸੋ ਫੀਲਡ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਫਾਈਨਾਈਟ ਫੀਲਡ ਕਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਾਈਨਾਈਟ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਫੀਲਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਾਈਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣ, ਉਸ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਾਈਟ ਫੀਲਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਇਹਦਾ ਗੈਲਸ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦਾ। So remember that any field with finite number of element is called a Gallus field or second name is called a finite field. So ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਗਰ P ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੈ, so if P is prime number, so ZP ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ 0 ਬਾਰ 1 2 ਸੋ ਔਨ ਅਪ ਟੂ P-1 ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੀਲਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਫਾਈਨਾਈਟ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਏ ਮੋਡੂਲੋ P, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੋਡੂਲੋ P ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਫਾਈਨਾਈਟ ਹੈ, then it is called a Gallus field ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਨੇਮ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਾਈਟ ਫੀਲਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨਾਈਟ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਸਟ ਥਿਓਰਮ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ what is the statement of this theorem? अगर मेरे कोल F and K these are finite fields, so finite field का मतलब इहदे number of elements साडे कोल finite होणगे। step number 1 such that F is part of K, so F ओदी सब field हो गई if order of F is equal to Q, यानी अगर F दे विच Q एलिमेंट है, so then we want to prove that order of K which is equal to Q raised to power n, this is for some positive integer n। क्लियर जी। सो बड़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ कि अगर तुहाडे कोल कोई भी फील्ड F है जिहदा ऑर्डर Q दे बराबर आ, तो उहदी सुपर फील्ड दा ऑर्डर जिहड़ा Q स्केयर Q क्यूब जां इन जनरल Q दी पावर n वर्गा होएगा। अगर Q दी पावर n वर्गा हो गया और n साडे कोल की आ सम पॉजिटिव इंटीजर्स। हुण आपां इस थ्योरम दा प्रूफ करन जा रहे हैं। सो व्हाट इज इन द गिवन पार्ट F इज पार्ट ऑफ K, ਇਹਦਾ मतलब K साडे कोल फील्ड एक्सटेंशन हो गई F दी। सो दिस इज ए फील्ड extension of a field F, ये साढ़े कोल फील्ड एक्सटेंशन हो गई। जे फील्ड एक्सटेंशन हो गई तो सानू पता कि साढ़े कोल की हुंदा वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F। सो दिस इज a vector space over field F and also degree of K over F ये कितनी होएगी, फाइनाइट होएगी। सो दिस इज अ फाइनाइट क्योंकि K साडे कोल फाइनाइट है सिंस ऑर्डर ऑफ K इज फाइनाइट, तो ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ डिग्री है वो भी फाइनाइट होएगी। अगर डिग्री फाइनाइट हो गई तो मान लो
डिग्री ऑफ के ओवर एफ इज इक्वल टू एन के बराबर। तो इट मीनस यदि बेसिस च एन वैक्टर्स होंगे। सो इट इंप्लाइज दिस वैक्टर E1, E2 and En. What is these? These are bases of K over field F। ये साढ़े कोल बेसिस बन गई। जे बेसिस बन गई, कोई भी एलीमेंट असी K च लवांगे, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਲਫਾ 1 E1 अल्फा 2 E2 अल्फा n En such that अल्फा I belongs to field F। ਹੁਣ अल्फा I ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ F ਦਾ ਆਰਡਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਆ, F ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਿਉਂ ਹੈ ਨੰਬਰ 2। ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਦੂਜੀ ਦਿਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन इज यूनिक, ये यूनिक होएगी। ठीक है जी, तो मतलब एक ही पॉसिबिलिटी है। हुण अल्फा आई साडे कोल किहदे बराबर आ गया, ऑर्डर ऑफ एफ दे बराबर। तो अल्फा 1 दी कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई, ये एफ दे विच आ, और ऑर्डर ऑफ एफ क्यू के बराबर आ। तो अल्फा 1 नूं असीं किन्ने ढंग नाल लिख सकते हैं, क्यू वे दे विच एक्सप्रैस कर सकते हैं। इदां ही अल्फा 2 नूं किन्ने वे च लिख सकते हैं, क्यू वे च। इदां ही अल्फा n नूं किन्ने वे च लिख सकते हैं, क्यू n वे, क्यू वे दे विच। सो अल्फा 1 नूं भी असीं क्यू वे च लिख सकते हैं, अल्फा 2 नूं भी लिख सकते हैं, जां क्यू इहदियां डिफरेंट चॉइसिस होणगियां। सो अल्फा आई इन बिलोंग करता। सो इट मीनस अगर मैं अल्फा आई लेना, then this alpha I have q different choices। ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ choices है वो किन्नियां होणगियां, q होणगियां choices। और I किनू रन कर रहा 1 to लैके n तक। अगर 1 तो n तक ਇਹਦੀਆਂ choices हो गई, तो टोटल choices किन्नियां हो गई, q दी पावर n। So it means order of k which is equal to q raised to power n। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एलिमेंटां दी possibilities किन्नी हो गई, q raised to power n हो गई। ठीक है जी। So that is a very simple way to find the साडे कोल order of k। इस तो बाद साडे कोल जिहड़ी अगली थ्योरम आ जाती है, ਉਹਦੀ स्टेटमेंट है every, what is this, every finite element, finite field has p raised to power n elements, p raised to power n elements for some prime number, some prime number p, for some prime number p and positive इंटीजर n। सो कोई भी असी फील्ड लै लीए, फाइनाइट फील्ड, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ऑर्डर है वो p रेस टू पावर n होएगा। ठीक है जी, ਉਹਦਾ ऑर्डर साडे कोल p रेस टू पावर n होएगा। सो इस चीज़ नूं असी प्रूफ करना। सो सब तो पहला असी इस गल नूं समझण दी कोशिश करिए कि अगर मेरे कोल f कोई फाइनाइट फील्ड है,
और कोई ना कोई इहदा फाइनाइट करैक्टरिस्टिक होएगा। मन लो ऑर्डर ऑफ f which is equal to finite। जे ऑर्डर ऑफ f फाइनाइट है सो ਇਹਦਾ मतलब करैक्टरिस्टिक f ਦਾ ਜਿਹੜਾ है वो कितना हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। और वो फाइनाइट कितना ਦਾ होएगा, p ਦੇ बराबर हो जाएगा। सो व्हाट इज p? p is some prime numbers, so it implies characteristic of field p, characteristic of f which is p, और p साडे कोल की है some prime number। why it is possible? so this is possible only because of साडे कोल finite field। then f has some prime subfield। so prime subfield means जिहदी होर कोई अग्यों सबफील्ड ना होवे। तो एक बारी मैं प्राइम सबफील्ड की डेफिनेशन तुहानूं रिवाइज करा देना। तो प्राइम सबफील्ड क्या हुंदी है, जिहदी साडे कोल होर कोई अग्यों जिहड़ी है सबफील्ड ना होवे, सो दैट इज कॉल्ड ए प्राइम सबफील्ड। सो व्हाट इज द डेफिनेशन? सो मैं एक बारी फिर दस देना। ए फील्ड f अगर साडे को फील्ड है, द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल सब फील्ड ऑफ f इज कॉल्ड स्मॉलेस्ट सब फील्ड ऑफ f एंड इट इज कॉल्ड ए प्राइम सब फील्ड। तो प्राइम सब फील्ड की डेफिनेशन मैं इत्थे रिप्रजेंट कर देना। सो इंटरसेक्शन of all subfield of f is called a prime subfield। so this is called a prime subfield of field f। और क्योंकि इंटरसेक्शन आ तो सानू पता ये सब तो स्मॉलेस्ट होएगी। स्मॉलेस्ट का मतलब ये तो बाद साडे को इस तो छोटी कोई होर सबफील्ड नहीं होएगी। तो अगर साडे कोल करैक्टरिस्टिक ऑफ f p दे बराबर आ गया, दैन इट मीनस इट इंप्लाइज, इत्थे असीं थ्योरम यूज कर रहे हैं, f has prime subfield और उस प्राइम सबफील्ड का नाम रखा कैपिटल P, सच दैट रिमेंबर दिस रिजल्ट, कैपिटल P इज आइसोमॉर्फिक टू Z by generated by P। रिमेंबर दिस रिजल्ट। सो साडे कोल Z बाय जनरेटेड बाय P साडे को इस तरह की फॉर्म बन गई। अगर इस तरह की बन गई सो वट इट मीनस जिहड़ी साडे कोल ऑर्डर ऑफ P है ये साडे कोल किहदे बराबर आ गई, क्योंकि इहदे विच एलीमेंट किन्ने आ, P दे बराबर। सो ऑर्डर ऑफ P साडे कोल आ गया स्मॉल p दे बराबर। बेसिकली ये p एलीमेंट्स आ गया, तो ऑर्डर ऑफ p स्मॉल p दे बराबर आ गया। तो प्रीवियस रिजल्ट के अकॉर्डिंग असी की फाइंड कर लिया कि एक साडे कोल सब फील्ड सी f, और उस फील्ड दे विच असी एक सब फील्ड लभ लई कैपिटल P, और इस कैपिटल P का ऑर्डर कितना आया, स्मॉल p दे बराबर। तो पिछली थ्योरम के मुताबिक जिहड़ी साडे कोल सुपर फील्ड होएगी ਉਹਦਾ ऑर्डर किदां दा होएगा, p रेज़ टू पावर n, और n साडे कोल की है फॉर
some positive integer which is equal to n ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ठीक है जी। तो मतलब कहन दा भी कोई भी साडे कोल याद रखना फाइनाइट फील्ड होएगी ਉਹਦਾ ऑर्डर साडे कोल p रेज़ टू पावर n वर्गा होएगा। अगर p रेज़ टू पावर n वर्गा नहीं है तो सानू वो फील्ड नहीं बनेगी, असी उन्होंने फील्ड नहीं कह सकते। ठीक है जी। और ये नाल ही आप ये भी देख सकते हैं, सो डिग्री ऑफ f ओवर p ये किहदे बराबर आ जाएगी, n के बराबर आ जाएगी। ये भी याद रखना, ये आप पिछली थ्योरम च कीता सी। सो उहदे मुताबिक साडे कोल असी इहनूं इस ढंग नाल एक्सप्रैस कर सकते हैं। मान लो अगर मैनू कोई कहंदा कि इफ देयर एग्जिस्ट ए फील्ड ऑफ ऑर्डर 10 कि 10 ऑर्डर की कोई फील्ड एग्जिस्ट करती, तो आंसर इज नो, बिकॉज वी कैन नॉट रिप्रजेंट 10 एज p रेज़ टू पावर n। आप 8 नूं कर सकते हैं इस फॉर्म च, 16 नूं कर सकते हैं, 27 नूं कर सकते हैं, पर 10 नूं नहीं कर सकते। सो जिन्हों असी p रेज़ टू पावर n दे विच एक्सप्रैस नहीं कर सकते वो साडे कोल फील्ड नहीं होएगी। तो फाइनाइट फील्ड हमेशा किस तरह की होएगी, वो साडे कोल p रेज़ टू पावर यानी प्राइम नंबर दी पावर n वर्गी होएगी। अगली थ्योरम दी स्टेटमेंट है एवरी स्टेटमेंट इज एवरी, कोई भी ले ली असी, एवरी फाइनाइट फील्ड और ये विच एलीमेंट किन्ने हुंदे p रेज़ टू पावर n, f विद p रेज़ टू पावर एलिमेंट्स, ये तो हुंदे ही है एलिमेंट्स, p रेज़ टू पावर n एलिमेंट्स। और is the splitting field of a polynomial केड़ी लई, x रेज़ टू पावर p रेज़ टू पावर n माइनस x, and this is over ZP, this is over ZP। ठीक है जी। तो p रेज़ टू पावर n की है ऑर्डर ऑफ f, और ये साडे कोल की है, इट इज़ ए फाइनाइट फील्ड। सो दिस इज माई प्रूफ। असी फस्ट पार्ट च ये प्रूव करना कि जिहड़ा साडे कोल एवरी एलीमेंट ऑफ f है, दिस इज ए रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर असी प्रूव करना कि एवरी एलीमेंट ऑफ f जिहड़ा है इट इज़ ए रूट ऑफ ए पॉलिनोमियल x रेज़ टू पावर p रेज़ टू पावर n माइनस x। तो पहला तो आप अल्फा इक्वल टू 0 लिया, वो बारे तो सानू पता ही है, वो इस इक्वेशन का रूट है। उस तो बाद असी f दे विचों कोई भी नॉन जीरो एलीमेंट ले लिया। जे असी कोई भी नॉन जीरो एलीमेंट ले लिया तो असी की प्रूव करना चाहते हैं, ये जड़ा नॉन जीरो एलीमेंट है, असी f जड़ा वो नॉन जीरो एलीमेंट ले लिया किहदे विचों, साडे कोल f दे विचों। और नॉन जीरो एलीमेंट लई f0 दे विचों असी 0 नूं सबट्रैक्ट करता, तो यदा ऑर्डर कितना हो गया, p रेज़ टू पावर n माइनस 1, एक एलीमेंट बाहर निकल गया, क्योंकि अल्फा नॉन जीरो तो f0 नूं बिलोंग करेगा। सो वट वी गेट दिस इज ए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, दिस इज ए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप विद ऑर्डर ऑफ f0 इज इक्वल टू दिस वैल्यूज। तो मैं लैग्रैंजियन थ्योरम लाती, अगर लैग्रैंजियन थ्योरम लाती
तो अल्फे दी पावर ऑर्डर ऑफ F0 1 के बराबर आ गया। सो इट सैटिस्फाई दिस इक्वेशन। अगर ये इस इक्वेशन को सैटिस्फाई कर गया तो बेसिकली अगर ध्यान नाल देखो तो ये बेसिकली PX पॉलिनोमियल है। ਇਹਦਾ मतलब ਸਾਡੇ ਕੋਲ अल्फा ਜਿਹੜਾ है ये की बन गया, ये बन गया रूट ऑफ पॉलिनोमियल PX विच इज़ इक्वल टू x रेज टू पावर PN माइनस 1। ਇਹਦਾ रूट बन गया। जे रूट बन गया तो एक चीज़ क्लियर हो गई कि एवरी एलिमेंट ऑफ F आर रूट्स ऑफ PX। एक पार्ट आ गया, असी स्प्लिटिंग फील्ड प्रूव करना, तो एक पार्ट आ गया this is every element is a root of this। हुण अगली गल च प्रूव करना भी जिन्ने भी ਇਹਦੇ रूट आ वो F ਦੇ एलिमेंट हो जान तो स्प्लिटिंग फील्ड आ जाएगी। चलो हुण असी बाद विच असी डिस्कस करते हैं। तो ऑर्डर ऑफ F किहदे बराबर है? ऑर्डर ऑफ F सानू शुरू च ही दिता होया किहदे बराबर है? P रेज टू पावर N दे बराबर। ठीक, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ क्योंकि ऑर्डर ऑफ F P दे है x रेज टू पावर PN माइनस x हैज़ P रेज टू पावर N डिस्टिंक्ट रूट्स। रूट्स क्यों जी डिस्टिंक्ट क्यों होए? क्योंकि ਇਹਦਾ हरेक एलिमेंट डिस्टिंक्ट आ और वो ਇਹਦਾ रूट आ, तो ਇਹਦੇ एलिमेंट किन्ने हो गए? ਇਹਦੇ बराबर हो गए। सो अगर ਇਹਦੇ बराबर हो गए दैन इट हैज़ एवरी एलिमेंट ऑफ F हैज़ आर रूट ऑफ दिस इक्वेशन और वो किन्ने आ? P रेज टू पावर। सो इट मीनस इट हैज़ एट लीस्ट ठीक है जी, एट लीस्ट P रेज टू पावर N डिस्टिंक्ट रूट्स। तो साढ़े कोल P रेज टू पावर N डिस्टिंक्ट रूट आ गया। ये मैं फस्ट पार्ट कंसीडर कर लिया। हुण सैकंड पार्ट नूं आपां डिस्कस करिए। सैकंड पार्ट च सानू पता डिग्री ऑफ PX ये किहदे बराबर आ? P रेज टू पावर N दे बराबर। ਇਹਦਾ मतलब P of X has at most P raised to power N roots। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਦੇ क्योंकि ਇਹਦੀ डिग्री इन्नी आ तो ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ N roots in field extension, in the field extension ZP। ठीक है जी। सो ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ P रेज टू पावर N रूट्स होंगे in the field extension। so it implies PX split completely as split completely as linear factor ठीक है, क्योंकि डिस्टिंक्ट रूट आ तो लीनियर फैक्टर दे विच यह कंप्लीटली स्प्लिट हो जाएगी। कंप्लीटली स्प्लिट हो जाएगी साढ़े कोल इन द लीनियर फैक्टर। जे FX च हो गई ਇਹਦਾ मतलब कि ये प्रॉपर सबफील्ड च स्प्लिट नहीं होएगी। जे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ही होगी तो आल्सो PX split cannot
cannot split completely in any proper subfield of f। ठीक है जी, क्योंकि ਇਹਦੇ रूट बराबर हो गए तो साडे कोल ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ स्प्लिट नहीं होएगी, सिर्फ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी होएगी। ਇਹਦਾ मतलब p of x has all roots in f। तो f ਦੇ रूट, f ਦੇ एलिमेंट px ਦੇ रूट हो गए और px ਦੇ रूट सारे f ਦੇ ਵਿੱਚ हो गए। तो what we get कि this f is a splitting field of polynomial px और ਜਿਹੜੀ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ओवर ZP ਦੇ ਉੱਤੇ है। ठीक है जी। सो ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ दो हिस्सों च डिवाइड करता। पहले हिस्से दे विच f ਦਾ हरेक एलीमेंट इस पॉलीनोमियल ਦਾ रूट आ और दूजा जिन्ने रूट आ ਜਿਹੜੇ px ਦੇ रूट आ वो f ਦੇ एलीमेंट आ। तो दोनों साडे कोल सेम हो गए। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही अगली साडे कोल थ्योरम आ जाती है which is again very important। So any two fields with p raised to power n elements are isomorphic। कि कोई भी असी दो फील्ड लै लीए सेम ऑर्डर दियाँ p रेज़ टू पावर n, वो आपस दे विच आइसोमॉर्फिक होणगे। ठीक है जी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। सो बाय द गिवन स्टेटमेंट मैं दो फील्ड्स लै लियां, एक लई f1 और दूसरी लै ली f2, दो फील्ड्स आ गई। सो दीज आर टू फाइनाइट फील्ड। ये साडे कोल दो फाइनाइट फील्ड है और दोनों का ऑर्डर की है सेम, सच दैट ऑर्डर ऑफ f1 ऑर्डर ऑफ f2 which is equal to p raised to power n। ठीक है जी। सो पिछली थ्योरम जिहड़ी असी कीती सी ਉਹਦੇ मुताबिक बाय अबव थ्योरम जो असी पिछे करके आए, बाय अबव थ्योरम पहला असी f की जगह ते f1 लै लीए। सो वट इज़ f1? f1 की बन गया splitting field of x raised to power pn minus x over zp ਦੀ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਫੀਲਡ बन गई। बिल्कुल ਉਸੇ ढंग नाल f2 साडे कोल सपलिटिंग फील्ड बन गई, क्योंकि दोनों के ऑर्डर तो सेम ही है। वो भी इस पॉलीनोमियल की सपलिटिंग फील्ड है और वो भी इस पॉलीनोमियल की सपलिटिंग फील्ड है। और सानू पता कि एनी टू सपलिटिंग फील्ड ओवर सेम पॉलीनोमियल आर आइसोमॉर्फिक। सो इट implies f1 is isomorphic to f2। तो केड़ा कंसैप्ट लगा ये च लगा एनी टू सपलिटिंग फील्ड ऑफ ए गिवन पॉलीनोमियल ओवर ए गिवन फील्ड
आर आइसोमॉर्फिक। असी उस कंसैप्ट नूं यूज़ किया तो साडे कोल ये प्रूव हो गया कि F1 इज़ आइसोमॉर्फिक टू F2। उस तो बाद साडे कोल जिहड़ा अगला रिजल्ट आ जाता, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कि अगर मेरे कोल कोई प्राइम नंबर है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, फॉर एवरी प्राइम नंबर P, कोई भी P प्राइम नंबर ले लिए, एंड N बिलोंग्स टू Z। N की है नैचुरल नंबर लेना चाहिए, तो इंटीजर की बजाय असी इनू जिहड़ा है वो कैपिटल N ले लेने, N बिलोंग्स टू कैपिटल N। अगर कैपिटल N नू बिलोंग कर गया, so it means it is a natural number, then there exists a field with P raised to power N elements। तो साडे कोल कोई ना कोई ऐसी फील्ड एग्जिस्ट करेगी जिहदे एलीमेंट साडे कोल P रेज़ टू पावर N हो जाएगी। ठीक है जी। सो ये मेरे कोल स्टेटमेंट आ गई जिहदा असी प्रूफ करना। नाउ प्राइम नंबर P दिता और असी फील्ड लभ रही। सो प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम, so what is the proof? First consider a polynomial, fx लिख लीजिए, और polynomial दी वैल्यूज आ गई x pn minus x, और this is polynomial of over z raised to power zp, यानी कि फील्ड ऑफ मॉड्यूलो साडे कोल P, और E नू मैं कंसिडर कर लेना स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ पॉलिनोमियल fx। ठीक है जी, इनू स्प्लिटिंग फील्ड मैं मान लिया। जब स्प्लिटिंग फील्ड मान लिया तो सानू पता इहदा ऑर्डर कितना होएगा P रेज़ टू पावर N, और इहदा करैक्टरिस्टिक कितना होएगा P दे बराबर। सो दिस इज ए करैक्टरिस्टिक ऑफ E इज इक्वल टू P, पिछली थ्योरम के मुताबिक, नाल दे नाल सानू पता ऑर्डर ऑफ E P रेज़ टू पावर N होएगा। ये असी सानू क्लैरिटी है। लो जी, फिलहाल आप करैक्टरिस्टिक नू मैंशन कर दी। सो मान लो f जिहड़ा है इट इज़ ए सैट ऑफ ऑल रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो अल्फा मैं E दे विचों लिया, और अल्फा साडे कोल इस पॉलिनोमियल दा रूट बन गया। ठीक है जी। तो साडे कोल f ले लिया, इट इज़ ए रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर रूट आ गया, स्प्लिटिंग फील्ड है, तो सानू पता f ऑफ x विच इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर P रेज़ टू पावर N माइनस x। इहदा मैं डेरिवेटिव लवां, ये होएगा P रेज़ टू पावर N x दी पावर P रेज़ टू पावर N माइनस वन। सो दिस वैल्यू, क्योंकि वह करैक्टरिस्टिक P है, तो साडे कोल आ टर्म जीरो हो जाएगी। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू माइनस वन की होंदा जीरो के बराबर। इहदा मतलब एफ एक्स हैज़ नो मल्टीपल रूट,
क्योंकि डेरिवेटिव साढ़े को 0 बराबर नहीं है। इट मीन्स एफ ऑफ एक्स हैज़ नो मल्टीपल roots in any field extension, कोई भी मल्टीपल रूट नहीं होएगा। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ रूट्स आ वो सारे दे सारे डिस्टिंक्ट हो जाएंगे। तो इट मीन्स all roots of px which is equal to 0, so these are distinct। ये साढ़े को डिस्टिंक्ट हो गए, सारे दे सारे रूट डिस्टिंक्ट हो गए। और ये रूट किन्ने हैं पी एक्स दे, एक्स दी पावर p रेस टू पावर n, रूट किन्ने p रेस टू पावर n। तो ऑर्डर ऑफ f दे विच रूट आ, तो ये साढ़े कोल किन्ने हो गए p रेस टू पावर n हो गए, क्योंकि डिस्टिंक्ट आ। सो असीं इहनूं इस फॉर्म दे विच एक्सप्रैस करता। मन लो अल्फा बीटा असीं दो एलीमेंट f दे विचों लए, मान लो अगर अल्फा बीटा, तो ये उहदे रूट आ, जे रूट है तो उस पॉलिनोमियल नूं सैटिस्फाई करनगे, यानी पी अल्फा भी 0 हो जाएगा और पी ऑफ बीटे दी वैल्यूज़ भी 0 हो जाएगी। जे वैल्यू 0 हो गई तो ये तो इंप्लाइज आ गया अल्फा रेज टू पावर पी एन इज इक्वल टू अल्फा। इतों आ गया बीटा रेज टू पावर पी एन विच इज इक्वल टू बीटा। सो दोनों वैल्यूज आ गई। और करैक्टरिस्टिक ऑफ ई सानू पता ही है, तो एक रिजल्ट असी कर सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा रेज टू पावर पी रेज टू पावर एन, इनू असी लिख सकते हैं अल्फा पी रेज टू पावर एन प्लस बीटा पी रेज टू पावर एन। सो दिस इज पॉसिबल बिकॉज करैक्टरिस्टिक ऑफ ई इज इक्वल टू पी दे बराबर। ठीक है जी, ये किद्दां होया? तुसीं इहनूं बाइनोमीअल नाल एक्सप्रैस करो, आ दो टर्मां छड्ड के बाकी सारियां टर्मां मल्टीपल ऑफ पी होणगियां। जे बाकी सारी टर्मां मल्टीपल ऑफ पी होणगियां वो 0 के बराबर हो जाणगियां, क्योंकि इहदा करैक्टरिस्टिक पी दिता। फिर आ गया अल्फा बीटा पी रेज टू पावर एन। सो इनू लिख सकते अल्फे दी पी एन और बीटे दी पावर पी एन। ये तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नाल ही हो गया। सो साडे कोल ये वैल्यूज़ असी प्रूव करतियां। हुण इत्थे आ जाइए, दिस वैल्यू बाय दिस किहदे बराबर आ गया? अल्फे दे। बाय दिस दिस इज अ बीटा। ਇਹਦਾ मतलब अल्फा प्लस बीटा भी ਉਹਦਾ रूट हो गया, और इधर भी सेम अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा बीटा भी ਉਹਦਾ रूट हो गया। सो अल्फा प्लस बीटा भी एफ ਨੂੰ बिलोंग कर गया, नाल दे नाल अल्फा बीटा भी एफ ਨੂੰ बिलोंग कर गया, क्योंकि साडे कोल रूट हो गया। तो एफ साडे कोल किदां दी हो गई? एफ साडे कोल क्लोज्ड अंडर एडिशन एज वेल एज मल्टीप्लिकेशन हो गई। तो सब फील्ड बन गई। जे सब फील्ड बन गई देन इट इंप्लाइज व्हाट इज एफ? इट इज ए सब फील्ड ऑफ ई विद, ठीक है जी। सो ये साडे कोल सब फील्ड बन गई, और एफ का
ऑर्डर तुहाडे कोल किहदे बराबर आ p दे पावर n दे बराबर सच दैट ऑर्डर ऑफ f इज इक्वल टू p रेज टू पावर n और f दे रूट सारे दे सारे f दे विच आ इहदा मतलब f ते e दोनों बराबर हो गए ठीक है f ते e दोनों बराबर हो गए सो वट इट मीन्स जिहड़ी f है ये इटसेल्फ क्या बन गई स्प्लिटिंग फील्ड किहदी बन गई एफ एक्स दी ओवर साडे कोल जेड पी ठीक है जी सो ये साडे कोल रिजल्ट आ गया कि साडे कोल अगर कोई भी प्राइम नंबर है तो असी एक ऐसी फील्ड लभ सकते हैं जिहदी पावर कितनी होएगी p रेज टू पावर साडे कोल n हो जाएगी सो दिस इज साडे कोल टू वे असी प्रोसैस कर लिया तो ये साडे कोल बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ नॉर्मली हर साल एग्जाम दे विच पुछया जाता हुण आपां नैक्सट पार्ट अल चलिए सो नैक्सट पार्ट मेरी थ्योरम दा है मल्टीप्लिकेटिव अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ नॉन जीरो ग्रुप ऑफ नॉन जीरो elements of a field f ठीक है जी of a field साढ़े को f बल्कि फाइनाइट फील्ड कह सकते हैं of a finite field is a साइक्लिक ग्रुप होएगा ठीक है जी मतलब कोई भी फाइनाइट फील्ड आ ਉਹਦੇ बारे सानू इन्ना दा पता ਉਹਦੇ एलिमेंट p रेज टू पावर n ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਟਿਵ ਗਰੁੱਪ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲਿਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट पहला तो ये ध्यान रखना और हर साल एग्जाम दे विच पूछा जाता सो वट इज़ द प्रूफ मन लो एफ साडे कोल है फाइनाइट फील्ड ठीक है जी तो ਇਹਦਾ मतलब ऑर्डर ऑफ एफ कोई ना कोई फाइनाइट नंबर होएगा क्यों वैसे तो सानू पता p रेज टू पावर n बन जाएगा इसका ऑर्डर तो फिलहाल आप फाइनाइट आ तो क्यू रेज टू पावर क्यू रखा और f स्टार मैं चूज कर लिया विच इज इक्वल टू f माइनस जीरो एलिमेंट जीरो नू बाहर कटता सो वट इट मीनस it is a set of all non-zero elements of f आ गया ठीक है जी सो जीरो नू बाहर कट के जो साडे कोल बाकी बचा वो किसी नॉन जीरो एलिमेंट वो आपां लिख लिया और सानू पता मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप हुंदा and we know that this f star with multiplication it is a group ਅਸੀਂ प्रूव कर चुके हैं जे मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप हुंदा तो ऑर्डर ऑफ एफ स्टार किहदे बराबर आ गया क्यू माइनस वन दे जे क्यू माइनस वन दे आ गया
तो बाय लैग्रैन्जियंस थ्योरम, बाय लैग्रैन्जस थ्योरम, बाय लैग्रैन्जस थ्योरम, अगर असी कोई भी एलीमेंट एफ स्टार दे विचों लेने तो अल्फा रेज टू पावर ऑर्डर ऑफ एफ स्टार आइडेंटिटी के बराबर आ जाएगा। अगर आइडेंटिटी के बराबर आ गया सो इट मीन्स अल्फा रेज टू पावर क्यू माइनस 1 विच इज इक्वल टू अल्फा, सो इट इम्प्लाइज अल्फा रेज टू पावर क्यू विच इज इक्वल टू अल्फा। तो असी इनू इस ढंग नाल रिप्रजेंट करता, दिस इज इक्वल टू दिस वैल्यूज फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू साडे कोल एफ स्टार। इनू असी इदा भी लिख सकते हैं कि अल्फे दी पावर सम क्यू माइनस 1, उस क्यू माइनस 1 नू एच या एन रख लीए, सो दिस इज इक्वल टू एच विच इज इक्वल टू 1 और वेयर एच इज इक्वल टू क्यू माइनस 1 और अल्फा जड़ा है इट बिलोंग्स टू एफ स्टार। ये वैल्यू आपां फाइंड आउट कर ली, ठीक है जी। सो इनू असी लैग्रैन्जस थ्योरम की मदद के नाल जिहड़ी उहदी वैल्यूज आ वो आपां फाइंड आउट कर ली। हुण आपां अगर लैग्रैन्जस थ्योरम नू करता दिस मैंबर नू प्राइम फैक्टर दे विच असी लिख सकते हैं। सो लेट दिस एच विच इज स्प्लिट एज P1 प्राइम फैक्टर अल्फा 1, P2 अल्फा 2 करते जाइए, मान लो P के अल्फा रेज टू पावर K। So these are the distinct prime factors where Pi's are distinct प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स कह लो, प्राइम फैक्टर्स कह लो, ये साढ़े कोल डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स आ गए। तो मैं पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करन लगा और पॉलिनोमियल किदां दी होएगी, एफ ऑफ एक्स नू मैं कंसिडर कर लिया एक्स रेज टू पावर एच और एच नू असी डिवाइड करता पी आई अल्फा आई, ठीक है जी। सो साढ़े कोल प्रोडक्ट सी पी आई अल्फा आई ना डिवाइड करता माइनस 1, दिस इज एच बाय साढ़े कोल पी आई, सॉरी नॉट अल्फा आई नहीं आना, सो एच ओवर पी आई दे नाल असी डिवाइड करता और माइनस साढ़े कोल की आ गया 1। सो दिस इज इन ए एफ ऑफ एक्स, ठीक है जी। ये असी पॉलिनोमियल ये लै ली क्योंकि ये कोएफिशिएंट इनू बिलोंग करते हैं। सो वट इज़ द डिग्री, सो डिग्री यदि कितनी होगी, डिग्री यदि होगी एच रेज टू पावर पी माइनस 1, जे डिग्री एच रेज टू पावर एच बाय पी आई आ गई, सो यदा मतलब एफ ऑफ एक्स has at most ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ h raised to h by pi roots ਹੋਣਗੇ in any field extension of f, any field extension of एफ, ठीक है जी। तो ये मैक्सीमम किन्ने फील्ड एक्सटेंशन च रूट होणगे साढ़े कोल वो होणगे एफ जेडे एच दी एच बाय पी रेस पी आई दे हिसाब नाल होणगे। क्लीयर हो गया जी। और सानू पता कि जेड़ा
अल्फा आई है, दिस अल्फा आई, वो भी इस इक्वेशन का रूट है विच इज़ नॉट रूट ऑफ दिस। किद्दां चैक कर लीए, सानू पता दिस वैल्यूज आ गई। रूट का मतलब अल्फा आई जिहड़ा है फील्ड दे विच, सिंस अल्फा आई इज नॉट रूट्स ऑफ एफ एक्स। किद्दां चेक कर लीए, अगर रूट नहीं है ਇਹਦਾ मतलब इस पॉलिनोमियल ਨੂੰ सैटिस्फाई नहीं करेगा। सो अल्फा आई एच बाय पी आई इज नॉट इक्वल टू 1। अगर ये रूट नहीं है विच इज़ नॉट रूट, सो देयर एग्जिस्ट कोई ना कोई अल्फा आई होएगा, क्योंकि अल्फा आई साढ़े कोल असी जिहड़ा है कोई ना कोई असी कंसीडर किया। वैसे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन असी उपर यूज़ कर रहे हैं, सो इस करके असी अल्फा आई ना यूज़ करिए तो उसकी जगह पर कोई ना कोई अल्फा जड़ा यूज़ कर लीए। तो अल्फा का रूट साढ़े कोल इस कंडीशन को सैटिस्फाई कर रहा, तो अल्फे रेज टू पावर एच इक्वल टू 1 है। तो यदा मतलब अल्फा जड़ा है इनू अल्फा आई की बजाय आई राइट दिस इज अल्फा, या ए भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो अल्फा इज नॉट ए रूट ऑफ अल्फा के एलीमेंट है एफ का। सो देयर एग्जिस्ट सम अल्फा बिलोंग्स टू एफ विच इज़ नॉट रूट ऑफ दिस इक्वेशन, क्योंकि ये इनू सैटिस्फाई नहीं, ये बराबर नहीं आता। ये तो पता ही है, आप पहला देख चुके हैं। हुण मैं कंसिडर करदा लेट बीटा आई, दिस बीटा आई, सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू अल्फा आई एच बटा पी आई रेज टू पावर एम। ये मैं इनू एक्सप्रैस करता पी आई एम आई, दिस वैल्यूज आ गया। हुण जदों बीटा आई दी पावर मैं पी आई एम आई भी लिख सकते कीता, तो ये साढ़े कोल की आ गया बीटा आई रेज टू पावर एच आ गया। किता नॉट अल्फा आई रेज टू पावर एच आ गया, दिस वैल्यूज। यदि पावर असी जो पी आई एम ले लिया, आ कैंसल हो गया, तो अल्फा आई रेज टू पावर एच आ गया। और अल्फा आई रेज टू पावर एच आ साढ़े कोल पे आया, ये किदे बराबर हो गया 1 के बराबर हो गया, क्योंकि अल्फा किनू बिलोंग करता एफ स्टार। अगर 1 के बराबर हो गया, so it means this is equal to 1 since alpha I जिहड़े असी लिया this is a member of F star। so असी alpha I जिहड़ा लिया, so this is a element of F star, field का element आ, field के element करके असी इनू express करता। so beta I equal to this, so beta I raised to power p I m I which is equal to आइडेंटिटी। जे आइडेंटिटी आ गई, ठीक, ये साढ़े कोल असी इत्थे फाइंड आउट कर लिया। बट ऑर्डर ऑफ दूजे पासे देखिए, बट बीटा आई रेज टू पावर पी आई एम आई दिस वैल्यूज -1, एक किधे बराबर आ गया। सो दिस इज इक्वल टू, दिस वैल्यू इज इक्वल टू अल्फा आई एच बाय पी आई, अल्फा आई एच बाय पी आई, सो विच इज
नॉट इक्वल टू 1। इस वैल्यूज आ गई। ठीक, चलो इनू ही छड्डो तो सिंपल इत्थे आ जाइए कि ऑर्डर ऑफ बीटा आई साडे कोल किहदे बराबर आ गया, क्योंकि सब तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर आ गया जिहदी पावर चढ़ के 1 के बराबर हुंदा, वो आ गया पी आई रेज टू पावर एम आई फॉर एवरी 1 2 3 4 5 एंड अप टू के। सो दिस इज के तक सी 1 2 सो ऑन अप टू के तक दिस वैल्यूज आ गए। हुण आपां जे प्रोडक्ट लईए, सो ऑर्डर ऑफ बीटा 1 बीटा 2 बीटा के दिस आ गया। इनू मैं एक्सप्रैस करता ऑर्डर ऑफ बीटा 1 बीटा 2 करते जाइए बीटा के दिस आ गया एंड दिस वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। सो दिस इज साडे कोल इहदी वैल्यूज आ गई। ऑर्डर ऑफ बीटा 1 बीटा 2 एम आई असी यूज करते पे। सो इत्थे थोड़ा जिहा आपां इनू अल्फा 1 की जगह ना, क्योंकि आपां थल्ले भी यूज किया आ, इनू M1 यूज कर लीए। सो दिस वैल्यू इज, क्योंकि असी अल्फा 1 थल्ले यूज किया आ, सो दिस कैन बी रिटन एज M1 M2 एंड M के। सो जे अल्फा 1 ना चलना फिर उस हिसाब नाल चलांगे, पर असी इनू एम के जिहड़ी पावर आ इंटीजर आ उस हिसाब नाल यूज कर लीए, नहीं तो फिर सानू इत्थे भी अल्फा आई नाल यूज करना पैना। चलो नाउ दिस वैल्यू विच इज इक्वल टू P1 रेज टू पावर M1 P2 रेज टू पावर M2 Pk रेज टू पावर MK। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू H के बराबर। सो असी प्रोडक्ट का एलीमेंट ले लिया। सो दिस इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ F स्टार। सो असी एक एलीमेंट फाइंड आउट कर लिया F स्टार च जिहदा ऑर्डर साडे कोल उहदे बराबर हो गया। मतलब असी देयर एग्जिस्ट सम बीटा, बीटे का नाम रख लिया बीटा 1 बीटा 2 बीटा के, और दिस प्रोडक्ट बिलोंग्स टू F स्टार सच दैट ऑर्डर ऑफ बीटा यानी एलीमेंट का ते ऑर्डर ऑफ फील्ड का ये सेम आ रहा। सो इट मीनस दिस F स्टार is a cyclic group. So this is a cyclic group. So here remember that कि अगर साडे कोल कोई भी फाइनाइट फील्ड है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ नॉन जीरो एलिमेंट है वो साइक्लिक ग्रुप जनरेट करते हैं। सो रिमेंबर दैट जनरेट ए साइक्लिक ग्रुप। हुण आपां इस तो अगले स्टैप ਵਿੱਚ चलीए। तो अगर साडे कोल कोई भी परफेक्ट फील्ड है तो उहदियां जिन्नियां भी फाइनाइट एक्सटेंशनस होंदियां वो सैपरेबल होंदियां। सो ये याद रखना कि जिन्नियां भी परफेक्ट फील्ड है फाइनाइट एक्सटेंशन आर सैपरेबल। ठीक है। सो अगली थ्योरम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट इज़ द स्टेटमेंट? एवरी फाइनाइट फील्ड, कोई भी असी फाइनाइट फील्ड ले लीए या फाइनाइट फील्ड एक्सटेंशन के ऑफ F, तो फाइनाइट फील्ड एक्सटेंशन साडे कोल के ऑफ F इज ए सिंपल एक्सटेंशन, is a simple extension। ठीक है। ये साडे कोल फील्ड जिहड़ी आ
ए फाइनाइट फील्ड है। कोई भी असी फाइनाइट फील्ड के उत्ते एक्सटेंशन लवांगे वो साडे कोल सिंपल एक्सटेंशन हो जाएगी। ये याद भी रखना। सो दिस थ्योरम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ के सानू फाइनाइट सिंपल एक्सटेंशन ऑफ फील्ड दिती है और क्योंकि सॉल्यूशन ऑर्डर ऑफ एफ साडे कोल फाइनाइट है, पहली गल। डिग्री ऑफ के ओवर एफ ये भी फाइनाइट है या फाइनाइट एक्सटेंशन है, डिग्री नूं लोड़ ही नहीं। जे फाइनाइट एक्सटेंशन है then it implies order of k ये भी साडे कोल फाइनाइट हो जाएगा। so, पहली गल तो ये समझो, ऑर्डर ऑफ के फाइनाइट हो जाएगा। तो पिछली थ्योरम के मुताबिक अगर के दे विचों मैं जीरो नूं बाहर कढ़दा तो जो बाकी बचया वो साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा। सो विच इज ए साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप मीन्स के स्टार इज जनरेटेड बाय सम बीटा और फॉर सम बीटा बिलोंग्स टू के स्टार। ठीक है जी, साइक्लिक ग्रुप आ। सो इट इज जनरेटेड बाय एफ बी आ गया। तो ये तो ही हो गया कि साडे कोल बेसिकली जेड़ा के स्टार है ये किदां दा हो गया, इट इज़ ए एफ जनरेटेड बाय बीटा। तो फाइनाइट एक्सटेंशन हो गई। सो इट मीन्स के जड़ी है वो किदां दी एक्सटेंशन हो गई, सिंपल एक्सटेंशन ऑफ एफ आ गई। सो दिस इज ए सिंपल एक्सटेंशन ऑफ एफ। तो ये तो आपां नूं फाइनाइट फील्ड जड़ा है वो आपां स्टडी कर लिया। सो फाइनाइट फील्ड जड़ा है वो साडे कोल इस ढंग दे नाल असीं कर सकते हैं। राइट जी। सो इहदी मदद ते अलजबरे दी मदद नाल एक तुसीं क्वेश्चन जरूर करना, वो है फाइंड द जनरेटर क्योंकि साइक्लिक ग्रुप बन गया, जनरेटर फॉर द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है ना, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ फील्ड साडे कोल कितना आ गया, 8 12 8 13 ते 17 फील्ड ऑफ ऑर्डर 8 13 ते 17। हुण इत्थे आपां गलती की करनी, असी ग्रुप थ्योरी दे विच जनरेटर फाइंड किद्दां करीदे सी, अगर n है तो नंबर ऑफ जनरेटर होंगे फाई ऑफ n। ठीक है, सिंपल फार्मूला सी, इट इज़ ए यूलर फंक्शन द नंबर ऑफ इंटीजर विच आर को प्राइम टू n। हुण इस केस च असी गलती की करनी है, साडे कोल जदों फील्ड हुंदी सी तो फील्ड मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप नहीं है, फील्ड दे विचों असी जीरो नूं बाहर कड्डीदा सी, तो जो बाकी साडे कोल बचिया सी वो साइक्लिक ग्रुप सी, तो ये जनरेट करता सी। इहदा मतलब इहदे विचों एक एलीमेंट बाहर निकलेगा, इहदे विचों भी एक निकलेगा, इहदे विचों भी एक निकलेगा। मतलब जे एफ दा ऑर्डर 8 है, अगर ऑर्डर ऑफ एफ है 8 या 13, तीनों इकट्ठे कर रहे हैं,
ਜਾਂ 70। the order of f star कितना हो जाएगा 7, एक सबट्रैक्ट 12, एक सबट्रैक्ट 16, एक सबट्रैक्ट। तो लभना की है जनरेटर, और जनरेटर का फार्मूला की हुंदा, सो नंबर ऑफ जनरेटर, नंबर ऑफ जनरेटर्स। ਇਹਦੇ आगे 5 of 7, ਇਹਦੇ आगे 5 of 12, और ਇਹਦੇ आगे 5 of 16। ਅੱਗੇ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ p-1, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 ਚ ਤੋੜ ਲਓ, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 into 3 12, और ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 raised to power 4 लिख लो। ਇਹਦਾ ਹੋਏਗਾ फार्मूला लगेगा p-1 यानी 6। सो ਇਹਦਾ लगेगा p स्क्वायर माइनस p-1, तो 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 माइनस 2, ਇਹਦਾ लगेगा 3 माइनस 1, 2 हो गया। ਇਹਦਾ सिंपल 2 raised to 4 माइनस 2 raised to power 3, ਇਹਦੇ ਦਾ 6 आ गए। ਇਹਦੇ आगे 4 माइनस 2, 2 गुणा 2, ਇਹਦੇ 4 आ गए। और ਇਹਦੇ भी तुसी फाइंड कर सकते हैं, 16 ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4p-1 3 8, तो 16 माइनस 8, ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ आ गए 8 आ गए। सो ਇਹਦੇ जनरेटर 6 ਹੋਣਗੇ, ਇਹਦੇ 4 ਹੋਣਗੇ, और ਇਹਦੇ 8 ਹੋਣਗੇ। सो in this way we can find the generator of a multiplicative group of a field। सो माइंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੱਖਣਾ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 0 ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਆਰਡਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦੈਟ ਥਿੰਗ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨਾਈਟ ਫੀਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਿਊਰਮਸ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ।